یہ ہے کہ پچھلے کافی دن سے مسلسل مسلمانوں کو بھڑکانے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا چاہتے ہیں یہ ہندووادی سنگٹھن، ان کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں۔ ہم نے ہر تکلیف برداشت کی ہے، ہر ظلم برداشت کیا ہے، لنچنگ برداشت کی ہے، بہن بیٹیوں کی بے عزتی برداشت کی ہے، لیکن رسول اعظم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو ہندوستان کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے۔ مذہب میں کسی قسم کی مداخلت، ہمیں نمک حرام کہا جاتا ہے، اور کون کہتا ہے؟ جو خود حرام خور ہیں وہ ہمیں نمک حرام کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا اپرادھ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہ حکومت نے اس پہ سنجان لیا، نہ سپریم کورٹ نے اس پہ سنجان لیا، نہ کہیں کسی نے اس کی خاص مذمت کی۔ تو یہ تمام چیزیں برداشت کرنے کے باوجود ہم خاموش رہے، کیونکہ ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں، اور دیش میں ہم نہیں چاہتے کہ افراتفری کا ماحول بنے، دنگا فساد ہو، یا دیش کا کسی قسم کا نقصان ہو، گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچے، کیونکہ دیش کی اکثریت جو ہے وہ ایکتا اور بھائی چارہ چاہتی ہے دیش میں۔ لیکن جب اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یا مذہب پر انگشت نمائی کی جاتی ہے، تب ہم مجبور ہو جاتے ہیں احتجاج اپنا درج کرانے کے لیے۔ تو آج خاص طور سے آپ لوگوں کو اسی لیے بلایا گیا ہے، اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان تمام چیزوں پر کارروائی نہیں کی گئی تو ہم سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کیا پلاننگ ہوئی، کب تک یہ آپ کا پروجیکٹ ہوگا؟ ہم ضلع پرشاسن کو 1 ہفتے کا وقت دے رہے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر اگر گریش راج سنگھ پر حکومت کوئی سنجان نہیں لیتی ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے، اگر جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ان لوگوں پر کارروائی نہیں ہوتی ہے، اور ایش نندا قانون میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کسی بھی مذہب پر، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مذہب کے دھرم گروؤں پر یا معزز شخصیتوں پہ اگر انگشت نمائی کی جائے تو اس قسم کی پابندی کا ایک ایش نندا قانون لایا جانا چاہیے۔ اگر حکومت 1 ہفتے کے اندر ہمیں کوئی آشواسن دیتی ہے، اس طرف کچھ کام کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم 1 ہفتے کے بعد سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن آروپی کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں، اور ان کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ تفریح کے لیے ایسا کر رہا ہے، وہ پاگل ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی مسلمان نے آج تک یہ نہیں پوچھا، ہندو سماج میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان نے صرف اس لیے کہ ہم ماحول بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے کبھی سوال نہیں اٹھایا کسی چیز پر۔ اگر سوال اٹھائے تو ہزاروں سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہو جائے گا، لیکن جو سناتن کے ماننے والے ہیں سناتن کو مانے، جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اسلام کو مانے۔ یوپی میں حال فی الحال میں دھرم پرورتن کے بہت معاملے سامنے ہیں، کیا ٹانگور بابا ہو آگرہ ہو یا بریلی میں مدرسے میں کئی لوگوں کا دھرم پرورتن کرایا گیا، پولیس نے خلاصہ کیا۔ دھرم پریورتن قانون ایک طرفہ کارروائی کر رہا ہے، ہزاروں معاملات مسلمانوں کے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دبا دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کا پرچار کیا جاتا ہے، کھلے عام دھرم پریورتن کرایا جاتا ہے، ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ بار بار ہم تقاضا کرتے ہیں، اس کے باوجود کارروائی نہیں ہوتی۔ سرے عام ویڈیو جاری کیے جاتے ہیں ان کو گو موتر پلانے کے، ان کے شدھیکرن کے۔ تو یہ دوہرا قانون جو ہے، دوہرا انصاف جو ہے، یہ اس طرف انگشت نمائی کرتا ہے کہ ہندوستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ سرکار جو بے ایمانی کرتی رہے، حکومت جو بے ایمانی کرتے رہے، وہی صحیح ہے۔ تو یہ 2 قانون اب ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھ سے بار بار لوگوں نے کہا، آپ کو یاد ہوگا جب شری لنکا کا واقعہ ہوا، مجھ سے بار بار لوگوں نے کہا کہ ہمیں سڑکوں پر آنا چاہیے، میں نے کہا ہمیں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک ہے،
श्रीलंकाइयों ने अपने देश को जलाने का काम किया, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। बांग्लादेश में जब ये वाकया हुआ हम पे फिर दबाव पड़ा, हम पे बार बार दबाव पड़ता है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे आपको करना चाहिए। हमने कहा हम नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, क्योंकि ये देश प्रेम के विरुद्ध है। अपने देश में आग लगाना, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हमारा हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। नेपाल के बाद भी बहुत मेरे पास फोन आए, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए हैं, मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो के आई है कि हम हिंदुस्तान में, क्योंकि श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है, हमें एकता और भाईचारा बना के रखना है। और मुखालफत की जहां तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। मुझे हैरत होती है, श्रीलंका के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने नेपाल को जलाने का, नेपाल को तोड़ने का, नेपाल को बर्बाद करने का काम किया। क्या उनके दिल में देश प्रेम की भावना नहीं थी? हमारे देश प्रेम की भावना बार बार हमें कचोटा जाता है, हमें नमक हराम कहा जाता है। नमक हराम, हमने तो अपना नमक हलाली और अपनी वफादारी अपने मुल्क के लिए साबित की है, और हमने जंग आजादी से आज तक हम अपने वतन के लिए जान देते रहे हैं। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों के तलुए चाट रहे थे, आज वो हरामखोर हमसे ये कहते हैं कि मुसलमान नमक हराम है। असल में हरामखोर वो लोग हैं जो हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए, जो कभी देश प्रेमी नहीं थे। वो जो देश प्रेमी कभी नहीं थे, वो आज हमें देशद्रोही कहने का काम कर रहे हैं। तो क्या नेपाल जैसा आक्रोश है देश की जनता में? इससे ज्यादा भयानक आक्रोश है, और सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, दीगर तमाम तबकात में भी मैं देखता हूं, सबसे मैं बात करता रहता हूं। दलित बेहद परेशान है, रोजाना उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है। अगर इस किस्म का माहौल बनता है तो मैं ये बताता हूं कि देश के लिए बेहद घातक हो जाएगा। हमसे जो कोशिश हो रही है, हत्तल इम्कान हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म का माहौल ना बने, लेकिन धर्म परिवर्तन, हमें अपना धर्म प्रचार करने की आजादी होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। और जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जाती है, मुकदमे किए जाते हैं, इस तरह उन पर मुकदमे अगर नहीं किए जाएंगे जो मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ इस किस्म के काम करते हैं, तो हालात हमारे भी हाथ से जाने का अंदेशा है। धर्म परिवर्तन को क्या आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? धर्म परिवर्तन, हर हिंदू की, हर मुसलमान जो बालिग हो गया, वो एक बार हिंदू से ऊपर उठकर, मुसलमान से ऊपर उठकर असल में मवाजना करे, गौर करे कि सही क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, किस राह पर चल के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो कौन सी हिदायत की राह है। तो अगर ये हिंदू मुसलमान में उलझे रहोगे तो तुम तो अपने देश का नुकसान कर रहे हो, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। हमारी दुश्मनी में, हमारी नफरत में हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश का जितना नुकसान कर चुका है, ये हमारे दुश्मनों ने इतना नुकसान हमारे देश का कभी नहीं किया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वो एक आचार्य आजकल अनिरुद्धाचार्य बहुत चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, देश प्रेम की भावना से कहा है, बेहयाई और बेशर्मी, बेगैरती, इसे रोकने के लिए कहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता क्या है? हिंदुस्तान की सभ्यता ये तो नहीं हो सकती कि लड़की लड़की के साथ शादी कर ले, बिना शादी के किसी के साथ रहे। हिंदुस्तान के संस्कारों की हिफाजत करना
आचार्यों की जिम्मेदारी है और उन पर छीटाकशी की जाती है, उनको ट्रोल किया जाता है। ये बहुत भयानक बात है। मैं अनिरुद्धाचार्य ने जो कुछ भी कहा, बेहयाई किसी भी सूरत में रोकी जानी चाहिए, बेशर्मी, बेगैरती। और हमारा मसला ये है कि आज हम हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या करे। इन तमाम तकलीफों के बावजूद आज तक हमने कुछ नहीं किया है। हमें भारतीय जनता पार्टी सता रही है, आरएसएस सता रही है, जुल्म कर रही है। हमें कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है, वो भी हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये गाली देकर हमारा इस्तेमाल करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। वो लोग हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमानों पर डिपेंड है। अगर हम नहीं है तो वो नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि ये मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो अब जब देख ही नहीं पा रहे तो वो जो दिख रहा है उन्हें वो बोल रहे हैं, जो सपने में उन्हें आ रहा है वो बोल रहे हैं। मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। जो देखिए, ऐसा है, धार्मिक शख्सियत को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि देश का माहौल अच्छा बना रहे, देश में अफरा तफरी ना हो। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और जान देना पड़े तो देने को तैयार, और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर अगर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो एनआरसी सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है कि मुसलमानों को जो उनके हुकूक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी तुमसे नहीं चाहिए, हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो। और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार की आपने होगी। चुनाव आयोग की बात कही, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी की बात से सहमत है, यानी कि आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? मैं वोट चोरी, देखिए, मैं वोटों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो सिर्फ वोटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो चुनाव आयोग जो एसआईआर ला रहा है, ये उसने बिहार में टेस्टिंग के तौर पर लाए हैं, इसे पूरे हिंदुस्तान में लागू करना है उन्हें। तो राहुल गांधी सिर्फ बिहार कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। उन्हें कहना चाहिए कि ये पूरे देश के लिए घातक है। तो मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम पार्टियों से नाउम्मीद हूं। वो जब भी मौका आया है, अखिलेश की सरकार आई है, 100 दंगे हमने बर्दाश्त किए हैं, हमने हर जुल्म हर सितम बर्दाश्त किया है, लेकिन अब इस किस्म के मजालिम अगर नहीं रोके गए, हुकूमत ने संजीदगी से इन तमाम चीजों पर गौर नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह, 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, इसके बाद हम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। ठीक है।